will join in, then we will start again. I had started, but there was some glitch and the last spaces got dropped. So the idea, as I was explaining, of the today's session is to exercise caution in the current market situation. I'm not saying that the market will start correcting from tomorrow, but the idea is the opportunities, or especially for the fresh investments, are getting lesser and lesser. So majority of the participants who do not have a very strong process or framework in place, so definitely they need to exercise great caution. And even if you have I mean you if you are sitting on a very good profit, so it's always advisable that so as to book in the companies where you think the valuations have gone crazy, or that has priced in the earnings of maybe 2 3 years down the line, because you never know, a correction is ensuing, or maybe some time consolidation may happen. And certain sectors, I mean, I'm not telling I mean about myself only, but I'm telling the general perception of the fraternity when we talk in our network. So this comes out to be a general perception that things are getting crazy. So it is always wise to exercise caution, because if you have made some good money, or maybe some unrealized profit in your portfolio, and if you keep on continuing along with the euphoria, so it might happen that you may lose on the profit which has been accumulated over a uh, last few months, or maybe after this release started. I'm not saying things will go negative or crazy, but again, you should be asking the question yourself: the companies which you are invested in, are those companies provide you valuation comfort, or you also see the growth visibility in earnings going forward? And definitely when markets are doing good, you should be cutting down on your less conviction ideas, because it normally happens that when we have volatility in the broader market, there are high chances that the companies, especially the small cap mid cap companies, correct much more than the index. And I was reading was in today's newspaper that more mutual fund investors are going via direct plans. So, I mean, if we go by the face value of this statement, it appears that this shift is welcome, and more and more people are like doing it themselves. But again, there is another side to it. So basically, the article reads that the most of the participants, these fintech platforms are providing easy access to all the participants, so that they can do I mean they can directly choose their direct mutual fund plans from there. But what the majority of the participants are doing, they are investing basis the past performance of the mutual funds. So there is always high possibility that what has worked for 2 3 years in line might not do that good going forward, because everything has cycles, right? Because the thought process of one fund manager may work in current market situation, and parallelly, like, other good fund managers also might underperform at any point in time, because everybody has got different style, right? And even I was hearing about I'm not sure I recollect the data good, but certain momentum, the AUM of one of the funds has grown 5 times, and that is again on the basis of past returns. So as and even for the fund manager, it becomes very difficult so as to like invest the incremental money, but they have a mandate, so they do invest. But again, how long that can happen without anything, I mean, कुछ कुछ negative ना हो,
because everything has a limit, right? Although we can see that the pendulum can extend on both the sides, be it over optimism or pessimism. But again, we as an investor has a responsibility to evaluate our investments. We should not be swayed by the past returns, and we should not be carried away by FOMO, which we experience when the markets are doing good. Even if you observe on Twitter, right? So when the market had corrected in March last year, so those 3, 4, 5 years, I mean, the participation of Twitter had reduced considerably. Even the number of spaces and the participants had declined drastically. The very moment the market had started a bull run, or maybe say ascending in positive direction, so the number of spaces, the number of people firing cylinders or showing fire emojis, that maine bola tha. So this is a basic tendency. We all feel good when our investments go good, and contrary to which, when they underperform or we make mistakes, so similarly we feel bad about that also. But again, our responsibility is that we shall be continuously improving our process. That can only be done by continuously learning. And obviously we are in an era of information overload. At times people also tell me that the number of spaces conducted should be reduced because they do not get time so as to go through those sessions, and that is well taken. If you have observed, in this month the number of spaces had been reduced for same reason, and I also feel like that. But again, since today is a big day, and everybody in our country is celebrating, so this celebration should also come with a positive aspect, that we should timely caution our regular listeners, participants, speakers, and whatnot. So first of all, I congratulate all of you that you have been so consistent joining us, and that gives us the necessary motivation. And you people are also kind in like suggesting the name of the guest who can add value, because one person cannot know all. But with the quality of suggestions and questions coming from you guys also help us learn as well. Even the guest speakers who come to this forum always say that the audience has a great set of questions, so kudos for that. And trust me, be it like direct investing or mutual fund investing, you should always be maintaining a balance, in the sense like the amount of AUM going in the small caps and the mid caps is still much larger compared to the large cap when we talk of mutual funds. So that should also be taken into consideration, because this year has, I mean, there are the fund managers or the financial market practitioners who are here for 30, 40 years. Basis their experience, they are saying that this year primarily there are high chances that large cap companies which had done comparatively the returns were suboptimal in last 2, 3 years, so there are high chances that they will be doing better in comparison to the mid cap and small caps, although their bases are long, and the possibility of growth on larger base is comparatively difficult. But again, if somebody in the industry who has spent 30, 40 years is saying something, so that thing comes with a weight, and we should not ignore those things. And obviously, there are people who have made the great money in the SMEs and small caps, but that doesn't guarantee you returns if you will be investing in those companies. So, first of all, you should be knowing that what suits you. You have to evaluate your process, what kind of companies you
you should be investing in. And if somebody is investing in small cap companies, then definitely that person has either I mean, you do not know what kind of style he carries, what kind of information or access to information on those companies he has. You do not carry the same amount of information about those companies, and definitely liquidity in those companies a bigger challenge. So we should be evaluating all those things, and definitely it's not difficult to operate stocks which has very less liquidity. So you should not be fooled by the past returns until unless you have sound access to the information about the company. I'm not talking about the insider information, but broadly what the company does, and what are the growth prospects going forward. Because as on today, like if you are looking at the price of the company, so there are high chances that whatever has been in public domain is already priced in, right? And you will only be making money on the future prospect and future growths in earnings. So these are some basic things which I had in my mind. So we got two three speakers, one by one I'll go to them, and then if they have any questions or small inputs, would be happy to take that. So first of all, IOD, you can unmute and ask your question. Anyways, so I mean, so सभी कभी कभी भूल जाते हैं, बट कुछ ऑडियंस ऐसे हैं जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी में भी चर्चा होनी चाहिए, और जो कि जरूरी भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल होते हैं, बट देर आर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंपली सिर्फ हिंदी में कंफर्टेबल है और कुछ सिर्फ इंग्लिश में है। तो हालांकि इंग्लिश में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, तो हिंदी में भी एक बार ये है कि मार्केट की जो अभी स्थिति है वो ऐसा है कि अक्रॉस द बोर्ड जो हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, अच्छे सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, फंड हाउसेस हैं, तो उन सबको अभी सब कॉशियस कॉल लेके चल रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कहो या फिर कुछ सेक्टर्स में जो रनअप है उसकी क्रेजीनेस कहो, उस सिचुएशन है वो काफी मतलब ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं, बट एवरीथिंग हैज अ लिमिट, राइट? तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में नहीं है, तो आप जो अपना इंक्रीमेंटल कैश है वो सोच समझ के संभल के इन्वेस्ट करें। और ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आपको मतलब वैल्यूएशन लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल्स पे चली गई, तो वहां आप पार्ट प्रॉफिट या बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग पूरा प्रॉफिट जैसे भी आपको उचित लगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्पेसेस आज हो रही है मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं तो कल ही कोई मार्केट में करेक्शन होगा, हो सकता है यहाँ से रैली भी आए। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अक्रॉस द बोर्ड जो व्यू बन रहा है वो यही है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और बेसिस फोमो स्पेशली जो सेक्टर्स आपको रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है वहां पे और ज्यादा रैली आ सकती हो। बट मेरे ओपिनियन में जैसे रेलवे डिफेंस है अभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रनअप उन्होंने दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मतलब वोलेटिलिटी आप लोगों को मिले। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेके कॉशियस रहें अंटिल अनलेस आपका बहुत ज्यादा टाइम होराइजन लंबा है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एक अच्छी कंपनी में भी आप रॉन्ग वैल्यूएशन पे एंटर करते हो, तो आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में बहुत लंबे टाइम के लिए प्राइस आपका बेसिकली रेंज बाउंड या उस तरीके से रह जाता है। तो मैं अभी अपने आप को थोड़ी देर रोकूंगा, बाकी स्पीकर्स से पूछते हैं, फिर विल कम टू एवरीबॉडी वन बाय वन। तो वाजपेयी जी नमस्कार, आपका क्या व्यू बन रहा है? हाँ, नमस्कार नमस्कार हर्ष जी। सॉरी हर्ष जी कह रहा हूँ, प्रिंस जी। तो ऐसा है कि हर्ष जी पहले से हमसे आए हुए हैं, तो पहले हर्ष जी का व्यू ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं भी अपना व्यू शेयर करता हूँ, क्योंकि वो हमसे पहले से नहीं ही है नहीं, फिगर उन्होंने पर। 2 मिनट का ब्रेक ओके लिया ओके, था, अगर वो अवेलेबल है कोई तो बात नहीं। हर्ष जी आप बताएं। कोई बात नहीं, मैं अभी हूँ अवेलेबल, तो आई मीन अगर वाजपेयी जी रुकेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हाँ हाँ, सो बोलिए बोलिए हर्ष जी जी। यस यस, सो एक्चुअली ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है कि एटलीस्ट कोई तो मेरे व्यू से मैच कर रहा है अभी
ये लेवल पे आके, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स पोस्ट हो रहे हैं अपने टाइमलाइन पे, और मीन्स पैसा भी बन रहा है ऑब्वियसली। जिस तरह से रैली आई है लास्ट कुछ दिनों में रेलवे स्टॉक्स में और जो भी, तो पब्लिक का पैसा भी बना है। जब तक मोमेंटम रहता है पैसा बनता है, पब्लिक का डेफिनेटली पैसा बनेगा बुल मार्केट में। लेकिन एक बार मोमेंटम गया और मार्केट रिवर्स कर देता है या फिर करेक्शन कंसोलिडेशन मोड में जाता है, तो वहां पे पब्लिक फंसती है। तो यहाँ पे ओवर स्ट्रेच हुआ है, जैसे प्रिंस भाई ने कहा कि रेलवे स्टॉक्स है। तो आई थिंक मैंने ला सैटरडे को ही डाला था रेलवे स्टॉक्स पे मेरा व्यू। सो यस, आई आई सेकंड हिज व्यू दैट यस, रेलवे स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही ओवर स्ट्रेच हो गए हैं। फ्रॉम हियर मे बी 20% मोर मे बी जा सकते हैं मोमेंटम में। बट अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट एक साल में या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स, एक साल भी छोड़ दो, 6 मंथ्स में और कितना जाएंगे, तो मंथली आरएसआई पे मैं आ रहा हूँ तो उसका ऑलमोस्ट 80 के ऊपर है। डेली पे मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ स्टॉक्स का 95 का आरएसआई आ गया। तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे आरएसआई का लिमिट 100 होता है, उसके ऊपर तो जा नहीं सकता आरएसआई। तो या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रेंज में जाएगा, या फिर पुल बैक दे देगा, करेक्शन दे देगा। दोनों में से कोई तो एक चीज होगी ही होगी। और यहाँ से और ज्यादा मीन्स ये मोमेंटम में कि और 50% और 100% बढ़ गए, वो तो होने नहीं वाला है। ये मेरा पर्सनल व्यू है बेस्ड ऑन माई रीडिंग्स ऑन टेक्निकल्स। सो मैंने मेरे पास थे कुछ रेलवे स्टॉक्स, तो मैंने मेरे पर्सनली बुकआउट किए हैं रेलवे स्टॉक्स। और इवन पीएससी स्टॉक्स, तो मैं पीएससी स्टॉक्स का भी चार्ट देख रहा था। तो मंथली पे आरएसआई 90 लेवल पे आ गया है। आई एम टॉकिंग प्योरली टेक्निकल बेसिस बिकॉज मैं टेक्निकल एनालिसिस हूँ। सो आई एम टॉकिंग इन दैट टर्म्स। So monthly RSI on PSE index itself has come to around 90 level. That so and monthly is a very big time frame. Monthly time frame पे अगर RSI 90 level पे आता है तो that is a very big indication के मीन्स मंथली टाइम पे अभी ओवर स्ट्रेच हो रहा है मार्केट। मंथली टाइम पे अगर मार्केट ओवर स्ट्रेच होगा तो बहुत ज्यादा टाइम के लिए कंसोलिडेशन मोड में पीएससी स्टॉक्स जा सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ओवर स्ट्रेच जोन में आया है। और हिस्टोरिकली मैं देख रहा हूँ कि हिस्टोरिकली 90 के ऊपर अभी तक तो गया नहीं है आरएसआई पीएससी पे। वहां से और हिस्टोरिकली देखेंगे तो करेक्शन आया है, साइजेबल करेक्शन आया है पीएससी में। तो या तो कंसोलिडेशन होगा, फॉर मल्टी वीक्स कंसोलिडेशन हो सकता है पीएससी स्टॉक्स में। और हमेशा बुल मार्केट में सेक्टर्स रोटेट होते हैं। तो अभी जो सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है इतना, शायद वो सेक्टर आएंगे जैसे कि मेटल है, आईटी है, जो बेस बना के ऊपर आ रहे हैं, अभी स्ट्रांगली फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं। उसमें मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि हैंड्स चेंज होते हैं, स्टॉक्स चेंज होते हैं, सेक्टर रोटेशन होता है। और जो स्टॉक्स ने ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच मूव दिया है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना इट वुड बी अ आइडियल सजेशन। या फिर नए फ्रेश बाइंग आप करने जा रहे हो तो आपका कितने होल्डिंग पीरियड क्या है, आपका रिस्क कितना है, कैपेसिटी। आप अगर स्टॉक यहाँ से आपके बाइंग प्राइस से 30% गिरता है तो आपको फर्क पड़ने वाला है कि नहीं फर्क पड़ने वाला है, उस पर मायने रखता है कि आप लोगे या नहीं लोगे। मे बी 1-2 साल में वो और 100% 200% भी बढ़ जाएंगे रेलवे स्टॉक, मे बी पीएससी स्टॉक। यस, दैट दैट इज पॉसिबल। बट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में क्या वो और 50% 100% बढ़ेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है विदाउट कंसोलिडेशन और विदाउट गिविंग अ डीप। Because RSI has hit a very overstretched levels on PAC stocks, on railway stocks, and on mid cap, small cap, सब जगह पे मंथली आरएसआई पे ओवर हीटेड लेवल आ रहा है। और मंथली चार्ट पे अगर ओवर हीटेड लेवल आ रहा है तो रिएक्शन तो मार्केट में आएगा। मंथली चार्ट अगर ओवर हीट 90 इज वेरी ओवर हिट, तो मिड कैप में भी 84 का आरएसआई आ रहा है, और इवन ऑन स्मॉल कैप। So there could be a short term knee jerk reaction or a consolidation के ये स्टॉक नहीं चलेंगे, वो स्टॉक साइडवेज मोड में जाएंगे, ज्यादा गिरेंगे भी नहीं लेकिन चलेंगे भी नहीं ये स्टॉक। मैंने कह रहा कि ये 30% गिर सकते हैं, बट अगर वो चले ही नहीं, कंसोलिडेशन मोड में जाएंगे, तो आप बोलेगे कि नहीं बाकी के स्टॉक भाग रहे हैं और मेरा स्टॉक नहीं भाग रहा है। सो दैट कैन बी अ सिनारियो। सो इन दीज सेक्टर्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसई, रेलवे,
बी एक्सट्रीमली केयरफुल, डोंट गो ओवर लिवरेज, और मीन्स एक्स्ट्रावेगेंटली उसमें ज्यादा अलोकेशन अभी आप करोगे क्योंकि थीम चल रहा है, सेक्टर चल रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें जाएगा, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारे इन्वेस्टर्स तभी आते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका होता है। जब आरवीएनएल में फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा था किसी को लेना नहीं था, जब वो 100 के नीचे लेवल में था, बहुत ज्यादा उसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखा नहीं था पब्लिक का, कोई बात भी नहीं करता था आरवीएनएल की, या फिर लाइक भेल भेल की भी कोई बात नहीं करता था, क्योंकि मल्टी ईयर भेल में ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को पैसा दिया नहीं है, या फिर आरईसी पीएफसी है, उनका 15 साल का ब्रेकआउट आ गया, डेफिनेटली 15 साल का ब्रेकआउट आ गया, वो ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी ओवर हिटेड रन दिया है उन्होंने, अभी यहां से और उतना ही रन देंगे क्या? तो नहीं, विदाउट कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं। आप देखो, आप एक बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, समझो ये 10 माला चढ़ रहे हो या फिर 20 फ्लोर्स पे जा रहे हो, तो वन शॉट आप 20 फ्लोर्स नहीं चढ़ पाओगे। आप पांच, कोई रहेगा 5 माला चढ़ के थोड़ा थक जाएगा, कोई 7 फ्लोर्स पे जाएगा उसको थकान आएगी, कोई 10 फ्लोर पे जाएगा, 10 फ्लोर पे जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके थकान तो आएगी। वन शॉट कोई 20 फ्लोर्स चढ़ के नहीं जाएंगे। तो मार्केट में भी वैसे ही होता है, जब भी ओवर स्टेज मार्केट होता है तो या तो नीरजर्क रिएक्शन आएगा, सडनली कुछ फॉल आ सकता है, या फिर कंसोलिडेशन मोड में मार्केट जाएगा, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट जा सकता है, और वहां पे आप फंस सकते हो, आप अगर एक्सट्रीमली ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप वहां पे करते हो तो आप सिलेक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करो, बहुत ज्यादा फोमो में बाइंग मत करो। आपको नहीं मिला बाइंग को, कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा आती है, मार्केट हमेशा सबको अपॉर्चुनिटी देता है, कंसोलिडेशन करके आरएसआई को कूल ऑफ करता है, और सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिफरेंट सेक्टर्स में मिलती है, चलो वो सेक्टर में नहीं मिली, दूसरे स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉक मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है। तो फोमो में अभी कुछ बाय करने के चक्कर में मत जाओ, मिड कैप, स्मॉल कैप, रेलवे, पीएसी, दैट्स माय व्यू। थैंक्स हर्ष। एंड डेफिनेटली एक एक एंगल ऐसा भी देख के चलें, जो कंपनीज हैं जहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट की या मतलब 75 से ऊपर है और उनका काफी अच्छा रनअप है, तो एक ओएफएस का भी ओवरहैंग वहाँ पे बना हुआ है। ऑल्दो इलेक्शन से पहले थोड़ा लेस लाइकली है, बट अगर 3 साल के पीरियड में जो उनको ओएफएस लाना होता है वैसा कोई पॉसिबिलिटी है, अनटिल जैसे एलआईसी या किन्हीं को थोड़ा बहुत उससे मतलब रिलैक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो एक अलग चीज है। बट ब्रॉडली आई वुड सजेस्ट कि वो एक एंगल भी दिमाग में रखें। और दूसरा, कैश भी अपने आप में एक पोजीशन है, राइट? देखिए, आप अगर अपने पास कैश रख रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने पे उस पे आप डिप्लॉय करोगे तो यू विल गेट गुड रिटर्न्स। और मान लो अभी आपने डिप्लॉय हाई लेवल पे कर दिया उस कैश को, अगर आपने वैल्यूएशन का ध्यान नहीं दिया, तो अल्टीमेटली वहां भी आप एक तरीके से, अगर करेक्शन आती है या फिर साइडवेज भी मार्केट रहती है, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी रहती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन है बेसिस योर फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स, और आप उसमें डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस बजा तो आप निकल जाएंगे, या कुछ आपको फंडामेंटल बेसिस पे आपका टाइम होराइजन इतना है कि भाई आपको फर्क नहीं पड़ता कि रिसेंटली कोई वॉलेटिलिटी रहे भी तो कोई इशू नहीं है, तो इन सच केसेस यू कैन डेफिनेटली गो एट। बट आपको 100% इस टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। वाजपेयी जी, आपका क्या व्यू है और आपके चार्ट क्या बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार भाई प्रिंस जी, सभी लोगों को नमस्कार। तो जो आपने टॉपिक रखा है, बी कॉशियस नो डिफरेंट दिस टाइम, तो इसी बिंदु पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही आपकी जो थीम है, ये डिफरेंट कभी नहीं होता, हमेशा एक ही जैसी चीजें होती हैं, रिपीट होता रहता है मार्केट में, रिपीटिशन होता है, और इसी वजह से हमारे चार्ट पैटर्न भी काम करते हैं, चाहे ऊपर की तरफ जाने के लिए हो, चाहे नीचे की तरफ जाने के लिए हो। तो जब मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर का बनता है, तो जैसा कि एक साइकोलॉजी होती है, जब मार्केट बढ़ती हुई दिखती है, चीजें बढ़ती हुई, तभी हमारा मन ज्यादा उसमें एंट्री करने का होता है। और जैसा मैं स्वयं भी देता हूँ, मेरे पास जब डीएम पर कुछ मैसेज आते हैं जो ऑल टाइम पे हाई पे स्टॉक होता है, तो उसके संबंध में वो एडवाइस या राय एक तरह से पूछते हैं कि भाई क्या आपको लगता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब ऑल टाइम हाई पर है तो वहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेरिश है, क्योंकि टेक्निकली तो वो बुलिश ही है। अब उसको हमें ये भी देखना है ना कि कहाँ से चल के आया और कितना बढ़ा है, उस पर रिस्क क्या है। तो जैसा अभी हर्ष जी ने कहा, मैं भी उन्हीं की बात से थोड़ा बहुत
मतलब उसी प्रकार से मैं भी सहमत हूँ कि मार्केट जब इतनी तेजी से बढ़ा है, इतने कम समय में इतनी तेज बढ़ा है, तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई समय मौका ढूंढता है मार्केट करेक्शन का। और जैसा इस महीने में भी अगर आप देखें तो इंडेक्स भले ही नया हाई बनाया है, बट अगर हम लार्ज कैप के स्टॉक्स में देखें तो कई स्टॉक ने ऊपर से 10-10% का करेक्शन दे दिया। अब आप इमेजिन करिए कि जब निफ्टी अभी सेम लेवल पे चल रही है और तब बड़े स्टॉक 10% करेक्शन दे रहे हैं, तो अगर इसमें 2-3% या 5% का भी करेक्शन हुआ, जो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल करेक्शन है 5% का होना, तो उस समय क्या स्थिति होगी। अब एक बात ये आती तो फिर क्या करना चाहिए, नई मार्केट में एंट्री करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो जैसा हर जी ने कहा कि आप हमें उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो अभी नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने आईटी के लिए कहा, तो मैं यहाँ पर उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि आईटी के अगर स्टॉक को हम देखें तो पिछले 2 साल में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर आप केवल बाई करके उसको छोड़ दे रहे हैं तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। जनवरी 2022 में टीसीएस का भाव 4000 कुछ टच हुआ था और अभी इसने 3900 कुछ टच किया, तो 2 साल में हमें कुछ नहीं मिला, केवल 2 बाईबैक मिले या फिर डिविडेंड मिला। तो इसी प्रकार से एलटीआईएम को अगर आप देखें तो 7500 रुपए का उसका हाई था और अभी हमने 7500 का उसका भाव भी नहीं देखा। 2-3 स्टॉक्स ने जरूर अपने पिछले हाई काटे हैं, तो केवल काटे ही हैं बस। बट मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जो टेक्निकल की स्टडी है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी रहती है, इसमें कोई दो नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से मतलब सहमत हूँ कि हर वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहेगी। 2000 पॉइंट गिरेगा मार्केट तो गिरेंगे सारे शेयर, बट अगर कोई स्टॉक बहुत गिरा पड़ा हुआ तो वो फिर उतना नहीं गिरता। दूसरा, जो बहुत बड़ा होगा, काफी हुआ होगा, काफी उसमें राइज होगा, उसमें हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर हम बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर कोई चीज लेते हैं तो हमें अपना एसएल या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई भी कैंडल हम पकड़ेंगे वीकली की या मंथली कैंडल को अगर हम देखें कि मंथली लो पर हमें तोड़ छोड़ना है तो वो एक लंबा स्टॉप लॉस मांगेगा। और एक जनरल टेंडेंसी होती है, लॉस एवर्जन बायस है, जिससे कि लगभग सारे इन्वेस्टर्स ग्रसित ही रहते हैं। तो लॉस एवर्जन बायस की वजह से वो क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, और फिर जैसा अभी हर जी ने कहा कि एक लंबे समय के लिए, और आपने भी जो बात कही कि हमारा पैसा फंस जाएगा, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमें अभी यहाँ पर काशस रहने की जरूरत है। जो बहुत तेजी से भागे हैं स्टॉक, उनके पीछे पड़ने की जगह पे अगर हमारा बहुत ही महंगा था, जैसे आईटी की बात हुई, तो आईटी में आप स्टॉक को चयन करिए, देखिए कि किसमें रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, किसका गाइडेंस अच्छी है और किसमें मैनेजमेंट भी अच्छा है साथ में। अभी मैंने दिसंबर के महीने में 4 दिसंबर 5 दिसंबर के आसपास प्रिंस जी आईटी इंडेक्स को मैंने शेयर किया था, उसका टेक्निकल लिखते हुए शेयर किया था कि इसका मंथली चार्ट पे मंथली एमएससीडी पॉजिटिव हुआ। अब देखिए, बहुत से लोग एमएससीडी को लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं और लैगिंग है भी वो, लेकिन इतना स्मूथन होता है कि वो बहुत देर में, वो खासतौर से मंथली चार्ट पर, तो उसका जो चेंज होता है वो बहुत लंबा टाइम लेता है। तो बहुत लंबा टाइम जब कोई चीज ले करके और वो कन्वर्ज होती है और उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो इतनी जल्दी से वो चेंज नीचे की तरफ फिर नहीं होता है। मैंने यही बात लिखी भी थी, और 6 दिसंबर से लेकर के और अभी 10 जनवरी और 12 जनवरी जो रिजल्ट आया उस समय तक आप देखिए आईटी इंडेक्स में काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिली, और स्टॉक्स में भी जितना तेजी इस पीरियड में देखने को मिली, इतनी तेजी पिछले कई महीनों में देखने को नहीं मिली थी। मैं यहाँ पर एक स्टॉक, हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, केवल ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने टेक्निकल पॉइंट पर ही ओएफएसएस को मैंने जून में आइडेंटिफाई किया था, जब उसका भाव 3500 था, और उस समय वो 3500 से 4000 गया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होता रहा, जैसा अभी हर जी ने बताया ना, कंसोलिडेशन चलता है। तो कई महीने कंसोलिडेशन के बाद देखिए इस रिजल्ट में वो किस प्रकार से 30% एक दिन में बढ़ा। अब प्रश्न ये है कि ये जो 30% एक दिन में बढ़ा, ये एक दिन में बढ़ जाएगा, ये बताना किसी के भी बस का पहले से नहीं होगा। लेकिन हाँ, 3500-3600 पर जब वो डाइवर्जन उसका हो रहा था मंथली चार्ट पर, तो उसी बेसिस पर मैंने उसे आइडेंटिफाई किया था और अपने टाइमलाइन पर शेयर किया था, साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो चूंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो इसलिए 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, केवल एक आइडिया शेयर करता हूं कि इसमें मुझे ये लगता है। तो सेम वे मैंने आईटी इंडेक्स पर भी ये शेयर किया था व्यू कि आईटी इंडेक्स में वीकली और मंथली दोनों मैकडी एक साथ
पॉजिटिव हुए थे और इसलिए इसमें मुझे ऊपर का दिख रहा था चाल, और वहां से हमें अच्छी चाल देखने को मिली भी। तो एक तो ये सेक्टर है जिसने पिछले 2 साल में अभी कुछ ज्यादा नहीं किया। तो आपने भी इसके ऊपर एक स्पेस भी किया था, मैं समझता हूँ वो आपकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी, तो उसमें एमिया ने काफी डिटेल में स्टॉक वाइज भी डिस्कशन शायद किया था। तो जो लोग चाहेंगे उसको सुन लेंगे और उससे एक अपना आइडिया ले सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट का होरिजन है तो। मैं हालांकि बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो संधार टेक्नोलॉजी हमने फर्स्ट टाइम अगस्त 21 में आइडेंटिफाई किया था बुलिस के रूप में, और उसकी मैं डीप स्टडी भी करी थी। कंपनी ठीक थी, बट 2 साल तक उसने कंसल्टेशन ही किया। मार्केट तो चलती रही, गिरती रही, लेकिन वो 200 रुपए से लेकर और 260 रुपए के बीच में केवल घूमता रहा। चूंकि उसने कैपेस किया था और ईवी के लिए उसका प्लानिंग थी, जो इस साल वो मतलब इम्प्लीमेंट हो पाई। एक प्रकार से जो उसने कैपेस किया था उसका रिजल्ट इस साल ही आना शुरू हुआ, और जैसे ही एक क्वार्टर में उसका रिजल्ट आया, आप देखिए उसके बाद वो शेयर डबल हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये केवल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये चलो ये हो गया। दूसरा मैं सुब्रोज का एग्जांपल देता हूँ। सुब्रोज में जब पहली बार हमको टेक्निकली ये ठीक लगा था, दैट वाज द मंथ ऑफ जून, जून या जुलाई का महीना, जून का महीना था। उस समय 325 रुपए के आसपास था। उसके बाद इसमें एक खबर आई और उस खबर के बेस पे 500 रुपए हुआ, 500 रुपए हो गया था, लेकिन वो खबर के बेस पे केवल हुआ था, कोई रिजल्ट में आने की संभावना थी नहीं परिवर्तन की। वो फिर करेक्ट हुआ और वो 360-65 रुपए तक आया। अभी अक्टूबर के लास्ट वीक में वो 356-57 का लो बना के गया। तो जो खबर उस समय आई थी, उस खबर का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया, और जैसे वो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर उसने बढ़ना शुरू किया। अब उसमें 2 बेनिफिट उसको मिले। एक तो ये बेनिफिट है कि इस बीच में मारुति ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो उसका एक बेनिफिट उसे मिलना ही था। दूसरा बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने ड्राइवर्स के केबिन, ट्रकों के केबिन एसी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसका भी उसे सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि 100% शेयर उसी का है। और आप देखिए वो शेयर आपका पिछले 2 महीने के अंतराल में, मतलब नवंबर और दिसंबर, जनवरी, 2.5 महीने में वो डबल के लगभग पहुंचने वाला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए ये मार्केट ऐसा नहीं है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, कुछ लोग कह देते हैं, बट मैं नहीं इस पर बिलीव करता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल से मार्केट में पैसा अच्छा बन पाएगा। हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंडामेंटल स्टडी और साथ में टेक्निकल स्टडी को करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल जो मैं मंथली चार्ट पर देखता हूं, मैंने इसको आज से नहीं कई सालों से देख रहा हूं, और मैं एक एग्जाम्पल के रूप में केवल रखूंगा। जो लोग चार्ट देखते होंगे देखेंगे कि मंथली चार्ट पे आप जाइए और एमएससीडी को लगाइए और देखिए 2017 में लुपिन में क्या हुआ था और आपके टाटा मोटर में क्या हुआ था। 2017 में मार्केट बढ़ी कितनी थी, लेकिन ये दोनों शेयर नहीं बढ़ रहे थे और गिरते ही रहे। अल्टीमेटली टाटा मोटर उस समय के 450 रुपए के भाव से आप ये समझिए 70 रुपए तक आया। लुपिन का चार्ट फिर कब चेंज हुआ उसको देखिएगा और उसके बाद उसका भाव देखिएगा। तो ये क्या है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मंथली चार्ट पर फोकस करना पड़ेगा। एक सिंपल सा इंडिकेटर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसको देखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये जितने हैं आपके गेल, भेल, आपका एनएमडीसी पर तो मेरा बहुत डिस्कशन हुआ था। मैंने शायद जून के लास्ट वीक में अपने टेलीग्राम चैनल इस पर लगभग आधे घंटे डिस्कस किया था, जब 106-7 रुपए के आसपास था, और वहां से वो 6 महीने में 7 महीने में डबल हुआ। तो थोड़ा सा चार्ट की स्टडी और प्लस उसकी फंडामेंटल या बैकग्राउंड जो भी है, देखिए उसके आप तो काफी स्पेस करके बहुत से एक्सपर्ट को बुला के आपने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे देखा जाना चाहिए। तो मैं तो उस शायद उतने लेवल का मैं काम नहीं करता हूँ जितने लेवल के लोगों ने बुला के बात कराई है, बट इसके बावजूद मेरा मन ये रहता है कि अगर मैं एक भी कोई स्टॉक कभी भी शेयर करूं तो उससे किसी को नुकसान ना होने पाए। यद्यप मेरा कोई 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, बट इसके बावजूद भी कई बार लोग उसको मान लेते हैं कि चलो इन्होंने डाला तो शायद ठीक ही। तो केवल इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि गलत ना होने पाए। हालांकि फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि अगर 10 स्टॉक डाले जाएंगे तो उसमें से 3 में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट हाँ अगर लंबे टाइम की बात होगी तो वो अल्टीमेटली फायदा देता है। अब 107 रुपए का एनएमडीसी जिस समय 107 रुपए था, उस समय इसकी इतनी ज्यादा वो नहीं थी, ना कहीं कोई चर्चा हो रही थी, कुछ नहीं हुई। जब वो 150 रुपए आया तब उसकी चर्चा होनी शुरू हुई 140 रुपए के आसपास। सेम थिंग भेल में थी। हालांकि भेल को मैंने उतना नहीं डिस्कस किया क्योंकि 30-35 रुपए, जब 50 रुपए के ऊपर तभी से मुझे ठीक लगने लगा था, तो फिर मैंने 100 रुपए और 125 रुपए आने के बाद मैंने उसका कभी कोई डिस्कशन नहीं किया। तो गेल था, उसको 105-6 रुपए पे
भी उसका चार्ट चेंज हुआ, लोग देख लेंगे तो उसका अपने आप अंदाजा लग जाएगा। आप केवल एक पॉइंट को देख लीजिए कि भाई मंथली पे क्या कह रहा है ये। अगर मंथली चार्ट उसका निगेटिव है तो उससे बच के रहिए। जो पॉजिटिव होके अब वो कोई 2 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, उसी से अगर हमें पैसा बनाना है तो फिर वो एक अलग बात है। तो ये उसके ऊपर तो जो आपकी ये लाइन है बिल्कुल सत्य 100% लागू होगी। और हर बार मार्केट में करेक्शन आने के कोई ना कोई नए कारण बनते हैं। बट अभी जैसे एज सच जो इलेक्शन पीरियड होता है, इलेक्शन ईयर जो होता है, अगर उसके पहले 4-5 महीने पहले से या तो मार्केट गिरने लगती है, नहीं तो फिर मार्केट साइड वे में रहेगी या अपर मोड ही बनाने का प्रयास करती है। क्योंकि अभी लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है, कोई भी इवेंट होने वाली होती है तो उस पर लोग पॉजिटिव ही रुख रखते हैं। अगर वो इवेंट में कोई चेंज हुआ तो फिर उसके हिसाब से एक बड़ा करेक्शन आता है। अब जैसे 1 तारीख का बजट आएगा तो इस बजट में कितना गवर्नमेंट कर सकती है इसका मैं समझता हूँ कि मेरे विचार जब है कि बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी मैटर डिसाइड नहीं हो पाता है इस बजट में, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीदें हैं। तो देखते हैं 1 तारीख के बजट के बाद कोई ये तो करेक्शन और रिजल्टों का जो करेक्शन है वो कंटिन्यूस हम देख ही रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को निश्चित रूप से थोड़ा सा कैश भी रखना चाहिए। और जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अच्छा स्टॉक किसी बैड न्यूज पर अगर वो गिरता है तो आप उसको वॉच करिए, और जैसे ही वो आपको थोड़ा लगे कि अब कंसल्टेशन इसका पूरा हो गया तो आप वहां भी पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने का मौका तो आपको बार बार मिलेगा, हर महीने मिलेगा, कोई ना कोई अच्छा स्टॉक गिरेगा। किसी हल्की न्यूज पे इतना गिरा दिया जाता है कि लगता है अब इसमें ये बिल्कुल अब चलने वाला, अब इसके बाद 10 साल तक नहीं चलेगा। तो जैसे आप शुगर स्टॉक के लिए आपने स्पेस भी किया था और उसमें भी बाय द वे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पर जो मैंने कहा था आप देखिए उसमें से लगभग जो शुगर स्टॉक मतलब शुगर कंपनी के संबंध में जो पॉलिसी का बिंदु था उस पर जो मेरा व्यू था वो तो लगभग सही निकला। मैंने यही कहा था कि इसमें देखिए कोई इतना बड़ा वो नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल कंपनीज को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनको बढ़ाने से तो काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा इसी सिलसिले में मैंने एक इंक्वायरी भी करी, एक कंपनी से सीधे बात की थी मैंने। तो उसके आधार पर ये भी मुझे पता लगा कि जो इन्होंने कैपेक्स किया और नया प्लांट लगाया है इन्होंने, वो फ्लेक्सिबल प्लांट है। तो फ्लेक्सिबल प्लांट होने की वजह से अब इस सेक्टर में केवल केन जूस पर ही डिपेंडेंस नहीं रहेगा एथेनॉल के लिए, ग्रेन से भी ये लोग बना सकते हैं, बनाएंगे, बना भी रहे हैं कुछ लोग। ये मैंने एक कंपनी का तो मैंने बताया था, ये कंपनी का तो क्लियर था। लेकिन अब जितने ने भी लास्ट ईयर में अपना कैपेक्स किया है उन सब ने फ्लेक्सिबल प्लांट लगाए हैं। तो अब ये अभी गन्ने के दाम बढ़ गए, ठीक, तो उधर उन्होंने एथेनॉल के भी दाम बढ़वाए हैं। अभी जो एथेनॉल का सपोर्ट प्राइस बढ़ा है तो उनकी डिमांड ये है कि भाई ये हमारे इंसेंटिव की जगह पर हमको प्राइस में ही पूरा चेंज किया जाए। और अभी केवल 2 तरह के एथेनॉल पे दाम बढ़ा है, तीसरे वाले एथेनॉल पे नहीं बढ़ा है। तो इन लोगों का प्रयास है पूरा कि इसको मिल वाले अपने लगे हुए हैं किसी प्रकार से बढ़े, और जब तक उनको वायबिलिटी नहीं रहेगी तो वो करेंगे नहीं। और गवर्नमेंट को एथेनॉल का अपना टारगेट भी पूरा करना है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। बट इसके लिए भी अगर मैं 6 महीने पहले ही लगभग इनके चार्ट जो मंथली चार्ट थे मुझे ठीक लगने लगे थे, और आप देखिए वो 18 रुपए 19 रुपए का बजाज हिंदुस्तान 36 तक गया। आपका मगध शुगर करीब 350 के आसपास था, वो 700 रुपए तक गया, डबल हो गया। तो मतलब कुछ और भी स्टॉक है, सबका तो मैं नहीं यहाँ पर जिक्र कर पाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें थोड़ा सा पैसा लगाते समय काशस रहना है, और काशस के साथ साथ थोड़ी स्टडी करके भी लगाना। अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपका विश्वास जो है वो मजबूत रहेगा और थोड़ा आप लंबा समय दे पाएंगे। जब लंबा समय देंगे तभी पैसा बनता है। आरईसी आज 400, 450 के ऊपर है। आज से 1 साल पहले क्या था आरईसी? 105 रुपए 106 रुपए था। और उसके 1 साल पहले क्या था? तो अगर आप देखेंगे तो कई साल तक वो चला ही नहीं। तो जब कई साल के बाद वो चलना शुरू हुआ और चार्ट में ब्रेकआउट हुआ, चार्ट चेंज होना शुरू हुआ, तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अब 100 पे नहीं लिया तो 150 पे भी नहीं लेता आदमी, फिर 200 पे नहीं लिया, चलो तो कोई और नया स्टॉक मिल जाएगा। गेल था, गेल 105 रुपए 106 रुपए पर उसमें पॉजिटिवनेस आई थी। 90 रुपए पर आईओसी था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 31 अक्टूबर को जो लिस्ट सॉर्ट आउट करके शेयर की थी उसमें आईओसी भी था, बीपीसीएल भी था, एचपीसीएल भी था। आज 450 या 480 पर बीपीसीएल की बात हो रही है, ये 515 हो जाएगा, तो भाई 35 रुपए बढ़ने की बात है। लेकिन उस समय तो 350 रुपए ही था और आईओसी तो मात्र 90 रुपए की थी। आप सोचिए, आप 90 रुपए का आईओसी और 5 रुपए का वो डिविडेंड देता है कम से कम मिनिमम, कई बार तो वो 10 भी दे देता है।
तो हमारा जो मिनिमम रिटर्न है, बैंक का रिटर्न तो आईओसी के डिविडेंड से ही मिल जाता था। तो ऐसे स्टॉक में पैसा अगर लगा करके हम भूलेंगे भी, तो मैं समझता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म में तो हमें देता ही रहेगा कुछ ना कुछ। और देखिए 150 तक पहुंच गया अभी मुश्किल से 2.5 महीने के अंदर। लेकिन उसके पहले आप देखिए तो कितने दिन नहीं चला है। मतलब प्रॉब्लम ये भी है, ये 2.5 महीने में ही क्यों चल गया। तो इस पर मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि सभी लोगों से कि भैया कुछ पढ़ लो, कुछ ना कुछ जो पुराने ट्रेडर्स ने किताबें लिखी है ना, उनमें पढ़ लीजिए साइकोलॉजी क्या होती है। जो इतने होलसेल ट्रेडर हैं, होलसेलर होते हैं, वो लोग इकट्ठा करने में टाइम लगाते हैं सामान को। उनको जब सामान उनका इकट्ठा होता है, चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, 2 साल तक वो एक्यूमुलेट करते हैं। और फिर जब चलता है शेयर तो पता लगा 2 महीने में चल गया। तो वो 2 महीने में चलता जरूर, लेकिन उसके पहले 2 साल का जो थकाने वाला पीरियड होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर इससे बचना है तो मैं थोड़ा सा एक इंडिकेटर जो मैंने बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है, इसको लोग देख सकते हैं। ये सोल यही नहीं है, बट आपको अगर लंबे समय के लिए पैसा लगाना तो एक बार मैं खाली इतने कहूंगा कि मंथली एमएसीडी के निगेटिव होने पर अवॉइड करिए। और अगर वो पॉजिटिव क्रॉस ओवर पर चल रहा है तो आप वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते रहिए। तो मैं समझता हूँ कि वहां पर आपको लंबे समय में 6 महीने से 8 महीने अगर रखेंगे शेयर तो रिटर्न ठीक ठाक दे देगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और जो भी जानकारी दी बहुत काबिले तारीफ है। और इतनी हमारी ऑडियंस मैच्योर है कि जो भी हम यहाँ पे कंपनीज के नाम लेते हैं वो आपके इलस्ट्रेशन के पर्पज से है, ना तो यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दी जाती है या एंडोर्स की जाती है। आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर रिसर्च और डिलिजेंस प्रॉपरली, क्योंकि आप दूसरे की बात सुनते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है और वो कब चेंज हो जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। सो एज टू अवॉइड दी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, इट इज ऑलवेज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते वक्त सोचें। दूसरा ये होता है कि जैसा सर भी बता रहे थे कि नॉर्मली जो रिटेलर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि भाई कंपनी जब चलना शुरू होती है उस टाइम पे आप लोगों को डाउट रहती है, डिनायल में रहते हैं। और जैसे ही वो अपना एक अच्छा सा रन अप लेती है और अच्छी खासी अप्रिशिएट हो जाती है, तो उस टाइम पे जब वो फोमो क्रिएट होता है तब वो आपको अच्छी लगती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो आपकी एंट्री होती है वो रॉन्ग पॉइंट इन टाइम पे होता है। वैसे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई मान लो जैसे सर ही बात कर रहे थे कि अगर हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं या फिर 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं, अगर वो वहां पे आया तो ऑब्वियसली बिना स्ट्रेंथ के तो नहीं आएगा। लेकिन जैसा हर्ष भी बता रहे थे कि आरएसआई भी हम देख सकते हैं कि वो ओवर हीटेड टेरिटरी में तो नहीं गई हुई है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देखो आप जब तक दूसरे पे रिलाई करेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि आप सारे न्यूएंसेस पिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई भी मे बी चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या आप थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, तो सबके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ। और कुछ भी आप बेचने के लिए सोच रहे हैं तो या बेच रहे हैं तब भी आपको ये होना चाहिए कि मैं किस लिए बेच रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बट इसको अगर आप अपना एक डायरी या कहीं पे मेंटेन करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प ये हो जाती है कि एटलीस्ट आप एक रीजनिंग दे पाते हैं कि भाई मैंने खरीदा तो क्यों खरीदा, और मैं इसको बेच रहा हूँ तो क्यों बेच रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स आज भी हैं जिनको दो तीन, ऑल्दो आपको लगता होगा कि ये काफी सेशंस में रेपिटेटिव हो जाता है कि भैया एक तो आप न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो न्यूज तो आज के टाइम में आप देख रहे हो कि भाई आप अकेले नहीं है जिसको एक्सेस हो रही है। ठीक है, अगर सोशल मीडिया हुआ या फिर आपका टीवी है या कोई भी माध्यम है, यूट्यूब है, अगर उसके माध्यम से आप कोई न्यूज के बेसिस पे सिंपली डायरेक्टली प्राइम फेसी न्यूज के बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको तकलीफ होगी। हाँ, आप इन माध्यम को ये हो सकता है कि भाई इसको आप एक जानकारी के रूप में लें, उस पे फिर आप फर्दर आप एनालिसिस करें, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको अगर कुछ अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मार्केट में हर टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और डिपेंड करता है कि भाई आपका टाइम होराइजन क्या है, आप किस तरीके की आपकी रिस्क प्रोफाइल है,
और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बुल फेज में क्या होता है कि सब अच्छे रिटर्न बना रहे हैं। तो देखो, एक तो आपका मार्केट लक है और एक आपकी स्किल है, वो सेग्रीगेशन आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप क्या होगा कि भाई चलो ठीक है, आपने कोई अच्छी कंपनी, जब मार्केट अप्रिशिएट होना शुरू करी तब वहां पे आपने लक कहो या किसी तरीके से आपने ले ली, उसने अच्छा करा, आपकी 3-4 इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो आप में एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, मेरे को तो अच्छे से इन्वेस्ट करना आ गया है। और रॉन्ग टाइम पे आप बड़ी कैपिटल के साथ अगर एक भी गलत दांव खेल देंगे तो वो फिर आपको ये रहता है कि आप मार्केट में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, उस पे भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि भाई जहाँ पे आपकी कन्विक्शन ज्यादा है, बैक्ड बाय योर हार्ड वर्क स्टडी, तो वहां पे आप ऑब्वियसली रह सकते हैं। और जहां लगता है कि अभी नहीं है, तो आप इसको बाहर बैठ के ऑब्जर्व करना या फिर स्लोली और ग्रेजुअली, जैसा कि वाजपेयी सर बता रहे थे कि भाई इंडिकेटर्स के बेसिस पे या अपनी स्टडी के बेसिस पे आप ग्रेजुअली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रेजुअली, जैसे एसआईपी सबसे बड़ी एडवांटेज ही ये होती है कि भाई ब्रॉडर मार्केट आपकी अप्रिशिएट हो रही है या करेक्ट हो रही है, साइडवेज है, तो आप हर लेवल पे खरीदते हैं तो आपका मोस्टली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलो या बाहर में जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होता है, तो उसके बेसिस पे आपका इतना आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आपने कहाँ खरीदा है। और मोस्टली आपका जब टाइम होराइजन, जैसे पीछे एक डेटा था कि लगातार आप 7 साल के लिए मार्केट में कंटिन्यूअसली देखेंगे तो मार्केट के पॉजिटिव रिटर्न ही रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या फोर्टे है, आपको क्या जमता है। और अपने प्रोसेस को रायता ना बनाएं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि यार टेक्निकल वाला भी सही बोल रहा है, फंडामेंटल वाला भी सही बोल रहा है, बिहेवियर वाला भी सही बोल रहा है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट ना करके उन चीजों का ऐसा मतलब रायता बना देते हैं कि यू डू अवे विद योर डिसीजंस, राइट। तो इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपको क्लैरिटी हो और आपके डिसीजन पॉइंट कम रहे, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि आप जितने ज्यादा डिसीजन लेंगे उतना आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पे हमें काम करना है। और मार्केट में देखिए, अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं है सारी चीजें खुद से करने में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप दूसरों की सर्विसेज लें। बट सर्विसेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई कोई टेलीग्राम पे टिप्स बेच रहा है या सोशल मीडिया ट्विटर पे टिप्स बेच रहा है आप उनके पीछे जाएं। आप रजिस्टर्ड लोगों को देखें और आप उनके थ्रू, और उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा भी नहीं है कि भाई हर रजिस्टर्ड बंदा है वो आपको एज पर योर एक्सपेक्टेशन अच्छे रिटर्न्स ही देंगे। प्रोसेस आपको पता करना है। देखो, हार्ड वर्क तो आपका वहां भी आएगा कि भाई किस बंदे को आप चूज करना चाह रहे हैं और उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। या फिर एक एक सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स रहती हैं जो ओपन फॉर ऑल होती है। अब रिपोर्ट पढ़ने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको थॉट प्रोसेस समझना है कि भाई उस एनालिस्ट ने वो चीजें लिखी हैं तो किस थॉट प्रोसेस से। ऐसा प्राइमा फेसी आप सिर्फ उस रिपोर्ट में सीएमपी और टारगेट प्राइस देखेंगे तो वहां पे भी मार खाएंगे। यू नेवर नो कि भाई किस सेंस में वो रिपोर्ट लिखी गई है, राइट। बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में सोशल मीडिया पे और चीजें तब लाई जाती हैं जब लोगों को अपना माल निकालना होता है। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आप रिपोर्ट्स को पढ़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड करेंगे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बीच घनश्याम सर भी आए हैं तो उनके व्यूज भी हम जल्दी से जानेंगे और फिर उसके बाद कुछ लोगों के सवाल होंगे तो सवाल लेंगे और उसके बाद फिर रैप अप करेंगे। घनश्याम सर, ओवर टू यू। या गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ओके। सो एक जो मार्केट में इफोरिया भी बन रहा है, लोगों को लग रहा है इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, जो बढ़ा है वो और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो जाता है कंजर्वेटिव इसके तरफ, और स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज देना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ पे, इसके बजाय कि जो बहुत भाग चुके हैं उसमें से
एब्रप्टली प्रॉफिट बुक कर लें, एग्जिट मार लें। अ, हाँ, एक ऐसे स्टेज पे मार्केट आ चुका है जहां पे अभी हो सकता है कुछ छोटे मोटे करेक्शन भी आ जाए। पर जो मैं फॉलो करता हूँ वो देख के मुझे तो ऐसे, मेरा गट फीलिंग ऐसा है कि एक वापिस से जो 21,450 21,300 का जो लेवल है वहां से मार्केट निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, निफ्टी 200, निफ्टी 500, तो उसमें भी जो घटने वाले शेयर थे उसका रेशियो कम हो रहा है। एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो अभी वापस से एक अच्छे लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ से वापस से रैली आ सकती है। साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि फोमो के अंदर में जाके बाइंग नहीं करनी है। जैसे हर्ष सर ने भी जो बताया कि रेलवे स्टॉक्स वगैरह जो और मेरे ख्याल से वाजपेयी सर ने भी बताया आरवीएनएल वगैरह बहुत बढ़ चुके हैं। आरवीएनएल हर्ष ने भी बताया कि वो कुछ स्टॉक का मंथली आरएसआई भी बहुत ऊपर गया, निकल चुका है। आरवीएनएल का डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 94 95 का डेली आरएसआई हो चुका है। ऐसे केस में वो स्टॉक में आइदर एक थोड़ा डिप आ सकता है या फिर वो कंसोलिडेशन में अगर जाएगा, मेजर करेक्शन ना आए फिर भी अगर वो कंसोलिडेशन में टाइम करेक्शन में अगर जाएगा तो वहां पे फिर उसके इंडिकेटर जो है वो स्मूथ होंगे। जब उसका आरएसआई एमएसीडी स्मूथ हो जाएगा डेली वीकली चार्ट पे और उसके बाद में वापस से वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेंगे, वो टेक्निकल थिंग्स देख के उसमें वापस से एंट्री कर सकते हैं। जूस तो बहुत बचा हुआ है, नो डाउट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, नीचे के लेवल से आपने पकड़ के रखा हुआ है, तो वहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हो और बाकी की पोजीशन डट के खड़े रहते हो, कोई हरकत नहीं। नया पोजीशन ये लेवल पे आके बनाना, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड पहले आप आपका मैच करो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, रिवॉर्ड क्या दिख रहा है आपको, और उस हिसाब से एंट्री लो। फिर अभी आज जो प्राइम मिनिस्टर ने एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलार के लिए कुछ एक योजना जाहिर की है, तो उसमें के कौन से अच्छे कंपनीज है, टेक्निकली अच्छे और साथ में फंडामेंटल भी अच्छे। मैं दोनों का मिक्स पे काम करता हूँ, टेक्निकल भी देखता हूँ और फंडामेंटल्स भी देखता हूँ। तो उस वजह से ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहती है। और मेरे सिस्टम के हिसाब से अगर उस कोई भी स्टॉक जिसमें मैं एंट्री दूं उसमें स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैं अपनी बिल्कुल नहीं सुनता, मैं वो अपने सिस्टम की सुनता हूँ। और वहां पे प्रॉपरली स्टॉप लॉस बुक करके उसमें से एक बार का मैं एग्जिट मार लूंगा। जैसे प्राज इंडस्ट्री एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें मैंने 2 3 बार एंट्री दी थी, पर वो जैसे ही ब्रेकआउट देता है नीचे घसरता है। तो अभी वापस से उसमें मैंने देखना छोड़ दिया। अभी जब वो कुछ एक स्टोरी वगैरह बनाएगा उसके बाद में देखेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल है मेरा ऐसे स्टॉप लॉस हिट होने का, दीपक फर्टिलाइजर। उसमें भी मेरा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और एक अच्छा एग्जांपल मतलब महाराष्ट्र सिमलेस, लास्ट ईयर एक स्पेस में डिस्कस किया था, 400 के आसपास उसमें एंट्री ली थी, फिर नीचे वो गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। वापस से जब उसने, वो स्टॉक ने 400 का लेवल ब्रेक किया, ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, एंट्री ले ली और डटे हुए। अगर स्टॉक बढ़ रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो क्या। जैसे एक बोलते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, अगर हाजमा अच्छा है आपका, यानी आपकी पचाने की शक्ति अगर अच्छी है, तो ही घी खाना चाहिए, अदरवाइज घी नहीं खाना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना पहले, आप कौन हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उस हिसाब से पहले अपने आप को पहचानो।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, कोई एंट्री किसी स्टॉक में एंट्री ले ली, आपका सिस्टम बोल रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, तो वहां पे सिस्टम को सुनना है, अपनी दिल की नहीं। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं वो स्विंग ट्रेड लेते हैं और उसमें जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठ जाते हैं। वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो, आपने क्या सोच के लिया था, और अगर वो नहीं चल रहा है तो जो टाइम उसमें लैप्स हो रहा है, मेरा भाव कभी ना कभी आएगा, वो सोच के मत बैठना। बाकी के बहुत से हैं ना और स्टॉक्स, इसमें से एग्जिट मारो, दूसरे में एंट्री करो। ओवर टू यू प्लीज। Thank you, sir. Very valuable inputs, I must say. प्रिंस जी, एक मिनट मैं थोड़ा सा बोलूंगा। घनश्याम जी नमस्कार भाई, आपको अभी आपने नासिक में क्या बुलाया उसके लिए बहुत बधाई। तो थैंक यू। मैं एक बात खाली यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि घनश्याम जी ने और हमने मिल करके पिछले साल मार्च में एक स्पेस किया था, और घनश्याम जी ने फंडामेंटल स्टॉक्स को स्क्रीनर्स पर कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए भी एक स्क्रीनर बना के दिया था। आप समझिए प्रिंस जी, विदाउट एनी मतलब किसी इंटरेस्ट के, ये केवल हम लोग डिस्कस किए। हमने कहा भाई एक ऐसा है कि चूंकि हम लोग यहाँ पर हैं, और प्रिंस जी मैं एक बात कहूंगा कि मैं इतने लंबे समय से मार्केट में हूँ, उसके बावजूद मैं स्पेसेस में जो आता हूँ तो यहाँ से भी मैंने कुछ ना कुछ चीजें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे आता, इतना होने के बाद भी, और हमेशा इसमें सीखने की गुंजाइश रहेगी, अभी भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ गुंजाइश बनी रहती है। तो मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आपके स्पेस में जो कुछ लड़के नए यंगस्टर्स को आपने बुलाया था, जिन लोगों ने वॉल्यूम के ऊपर डिस्कशन किया था काफी डिटेल में, तो उसके बाद मैंने वॉल्यूम पर काफी फोकस किया। और मैं खाली एग्जाम्पल के रूप में दो चार, क्योंकि वॉल्यूम को डेली के डेली देख के तो मैं नहीं ट्रेड करता, बट स्पेशल वॉल्यूम जो होता है, स्पेशल वॉल्यूम जब कहीं क्रिएट होता है, वो कहाँ पर हमें बाई करने का है और कहाँ पर हमें सेल करने का है, ये जरूर मैंने मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है, और मैं उसको कर भी लेता हूँ। तो मेरा कहना पर है कि जब हमें कोई चीज कहीं से एक क्लू मिला, जैसे हमने एक चीज बताई, तो उसके बाद क्या है कि हमें उसके डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, और डिटेल स्टडी करने के बाद चूंकि हमारे पास बैक टेस्टिंग की इतनी सुविधा उपलब्ध है, हम उसकी बैक टेस्टिंग भी करते हैं 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। अब तो 10 साल का चार्ट तो 15,000 आराम से उपलब्ध रहता है। और हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो मंथली चार्ट पे पहले उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट से एक अच्छा वो बनता है। तो वो वॉल्यूम की चीज हमने यहाँ सुनी समझी, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम का मुझे पता नहीं था, बट मैं वॉल्यूम पर उतना फोकस नहीं करता था। बट जब एक व्यक्ति ने आके यहाँ पर बताया कि वॉल्यूम से इस तरह से इसका हम काम कर रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, इसको भी किया जाए अपने उसमें। तो कहने का तात्पर्य तो ये बात हो गई कि जो भी यहाँ पर स्पेसेस में डिस्कशन है, ये एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है। हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। घनश्याम जी ने बहुत अच्छा स्क्रीनर बना के दिया, स्क्रीनर पर जिनको आपने बुलाया था, स्क्रीनर.इन के जो आपके बनाने वाले थे, उनके भी आपने स्पेस किया था। तो उस स्क्रीनर पर कैसे आप फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, इसका भी स्क्रीनर बना के घनश्याम जी ने दिया 1 साल पहले। जो स्टॉक इन्होंने मार्च में निकाल के शेयर किए थे उस स्क्रीनर पर, मैं समझता हूँ वो लगभग सारे के सारे अच्छा रिजल्ट दिए हैं। शेयरिंग 2-3 बार हम लोग कर चुके हैं, अब उसको कितना लोग फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं, मुझे नहीं पता, बट कोशिश हो रही, जो आपकी कोशिश है, आप भी डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कराते हैं। एक्सपीरियंसेस से क्या होता है कि हमें क्लू मिलता है, और जब कोई क्लू मिलता है तो उस क्लू को फिर हमें उसे मतलब डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो स्टार्स के दिए वो पिछले इतिहास के मैंने इसलिए दिए, कोई बाई का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहता। मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ कि भाई मैं सेबी में जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता हूँ तब तक तो मैं कोई 22 की रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, इसीलिए मैं कभी भी नहीं लिखता हूँ कि ये बाई करने लायक है। तो मैं घनश्याम जी की उसी बात के लिए केवल एक बढ़ाना चाहता था कि घनश्याम जी ने भी इस चीज को किया, और हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स का हम जितना अच्छा प्रयोग करते रहेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट निकलते रहेंगे। हम किसी की वो लेंगे, मान लिया सेबी रजिस्टर्ड भी कोई है, तो देखिए सेबी रजिस्टर्ड के लिए क्या कंपल्सन है, मैं मोटा मोटी बता दूं। घनश्याम जी ने भी एनआईएसएम सर्टिफिकेशन किया हुआ, और मैंने भी किया हुआ। मुझे 3 साल हो गए एनआईएसएम को सर्टिफिकेट लिए हुए, जो रिसर्च एनालिस्ट के लिए होता है, और उसके बेस पर मैं सेबी में रजिस्ट्रेशन भी करा सकता हूं। बट चूंकि उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं तो इसलिए मैंने उसको करवाया नहीं है।
अब उसमें जो एक कंपल्सन रहता है सेबी रिसर्च एनालिस्ट के लिए कि वो जिस स्टॉक का रिपोर्ट जारी करेगा पॉजिटिव, बाई या सेल, तो बाई का अगर उसने कर दिया तो वो स्टॉक वो नहीं बाई कर सकता रिपोर्ट इश्यू होने के एक सर्टेन टाइम तक, और उसके कुछ टाइम पहले की भी बाई नहीं होनी चाहिए उसकी। मतलब कहने का अगर आपने एक स्टॉक डिस्कस किया, आपने रिकमेंड किया है, तो आप सपोज नहीं किया आप उसको बाई करेंगे, आप केवल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और वहां कहीं नहीं किसी मतलब किसी भी क्लास में ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट गलत हो गई तो आपको जो है कुछ कर दिया जाएगा या आपको कोई पनिशमेंट दे दिया जाएगा। बस स्टडी करी आपने, अपनी स्टडी को आपने शेयर कर दिया, बाई की रिकमेंडेशन दे दी। चूंकि सेबी में आप रजिस्टर्ड हैं, सेबी ने कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन फिक्स की हुई है कि वो ये मानते हैं कि भाई अगर कोई देगा जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है, इतनी क्वालिफिकेशन रखे है, तो वो कुछ ना कुछ देख के पढ़ के समझ के देगा। बस यही एक उसका अंतर है सेबी रजिस्टर्ड का। और सेबी रजिस्टर्ड से आप ये नहीं मान सकते कि दैट इज 100% सिक्योरिटी की गारंटी रहेगी। और उनकी आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, सो वाजपेयी सर, ये डिस्कशन अब यहीं पे इसको विराम देते हैं, ठीक है। और आज का दिन सभी भारतवर्ष और मैं कहूँगा विश्व के वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश को और इस विश्व को एक नई ऊर्जा, नया डायरेक्शन मिलेगा। इसको हम किसी व्यक्ति विशेष या एक आदमी से ना जोड़ के पूरे विश्व का के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और डेफिनेटली जो राम जी के दिखाए मार्ग थे उन सब पे हम सबको चलना चाहिए। और मार्केट में भी हम उस चीज को कैसे लागू कर सकते हैं, उस चीज पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि जितनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से हम यहाँ पैसा कमाएंगे वही हमारे साथ चलेगा। तो हमारी प्रैक्टिसेस हमेशा फेयर होनी चाहिए और जितना कोशिश हो अपनी कैपेसिटी में दूसरे को सही गाइड करें, और किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते या छोटी चीजों के चलते हम इस प्लेटफॉर्म को कभी मिसयूज ना करें। क्योंकि कुछ भी चीजें हैं कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में बाहर आई जाती हैं। तो अपनी अंतरात्मा जो चीज नहीं मानती वो दूसरों के साथ करना कितना गलत है। और मैं कॉशन करने का सिर्फ इतना सा पर्पस था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में नए आते हैं या बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, कुछ ऐसे भी परिवार से होते हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है और उनको लगता है कि हाँ हम अपना फॉर्च्यून बदल लेंगे, और उसके चलते वो शॉर्टकट्स लेने की या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में घुस जाते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी हाई ये रहती है कि भाई आप बिना सोचे समझे चीजें कर लेते हैं और नुकसान कर लेते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो घनश्याम जी ने रेज किया कि भाई स्टॉप लॉस, और आपको वहां पे इमोशंस नहीं लेके आने हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप टेक्निकल के बेसिस पे अपने डिसीजन ले रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस रखना हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटजी रहती है। और अगर आपकी कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और अगर आपका टेक्निकल बेसिस पे एंटर है तो उसका भी आपको देखना चाहिए कि भाई आपका बहुत ही शुरुआती दौर है तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे एक आपकी सेफ्टी रहती है कि भाई एक प्रॉपर फंड मैनेजर या पूरी टीम रहती है जो आपके लिए काम कर रही है। अगर आपका टिकट साइज थोड़ा बड़ा होता है तो ऑब्वियसली आप अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की या एडवाइजरी की सर्विसेज ले सकते हैं जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड को भी अपना पैसा दे सकते हैं आपका पैसा मैनेज करने के लिए अगर आपका टिकट साइज बड़ा है तो। क्योंकि देखिए मार्केट में आप सीधे बड़े पैसे के साथ कूदेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट में आप वो पैसा गवा देंगे। तो अगर आपका ओवरऑल टिकट का 0.5 या 1%, 1.5% तक अगर आप इन सर्विसेज पे खर्च करते हैं तो वो एक रीजनेबल अमाउंट है। बट ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में लगाने 1 लाख रुपए और आप 20,000 40,000 की सर्विसेज ले रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, तो वो सजेशन तो कोई भी नहीं देगा। और आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल में भी आप लोगों के साथ बहुत सारे गेम होते हैं, वो जब आप अपना हाथ जला लेते हैं तभी आपको पता चलता है। तो ऐसा ना करें, मार्केट में कुछ भी इजी नहीं है।
ओवरनाइट आपको एक्सपेक्टेशंस जो दिखा रहा है वो आपको देयर आर हाई चांसेस कि बेवकूफ बनाएगा। आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। शुरू में हो सकता है आप इतना अच्छा ना करें, बट जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे, तो मार्केट कभी ना कभी आपको अच्छा मौका देगी जब आप सिर्फ पैसा नहीं बिल्कुल अपनी नेटवर्थ चेंज कर सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तो जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर। जय श्री राम, जय श्री राम, शुभ रात्रि सभी लोगों को। धन्यवाद। ओके। जय श्री राम एंड गुड नाइट।